should not be an issue. Just in case if my audio isn't clear or can't hear me, it's just stop me and let me know if there are issues with the class screen sharing or the audio. Okay, so we'll start now. Started the recording. Yeah, it is being recorded. Cross check that. Yeah, being recorded. And this is our course on antennas and radiating systems. And this is the course outline. We discussed this the last class, the first class. We looked at basics of EM theory, and second class or the last class we did introduction. We looked at directivity, radiation pattern. What else? Maybe gain, bandwidth, and we also outlined how to calculate the E fields and H fields. And today we will look at radiation fields of elemental dipoles. Let's quickly recap what we did in the last class. Like just one slide with what we were discussing before we ended the class. Um, yeah. So the last class we were looking at how do we calculate the electric field and magnetic field from the current distribution, and like how do we get the electromagnetic field. So what we did was we formulated this way. हमने ये तरीका देखा that if we have the information of charge distribution or the current, अगर हमारे पास this charge distribution या फिर J current density, अगर ये है तो we can get the electric field and magnetic field, and we will follow some steps. And as an example, we will discuss electric dipole today and infer that my magnetic dipole can be also wound out in the similar way. And basically, these charge and current, they are the source information. And if they are our source, then we can formulate how the electric field and magnetic field will be. And we introduced something called as magnetic potential, and V, which was the electric scalar potential. And these two are the quantities which help us in calculating the electric and magnetic field without having to do too much integration. And we all know integration is difficult, and it's much easier to just uh, differentiate and find out the derivatives and get results. So we will do just one integration, and then we will do derivatives and get the electric and magnetic fields. So, and our goal will be to calculate the H field or E field, and the other can be obtained from, like, we can get one from the other because they are interlinked. So so we'll try to get the magnetic field, and once we have the magnetic field, we can take curl. So del cross
just to remind, del cross is called curl, del dot is divergence, and just multiplication by del is gradient. And this is gradient is for scalar quantities, and curl and divergence is for vector quantities. And since E and H are vector quantities, we will take the curl of the magnetic field, and this will give us the electric field. So in the last class, we emphasized and we outlined how we go about this process. So the first thing we do is calculate the magnetic vector potential A using J. Once we have J, we can calculate A, and J is the distribution on the your antenna or your device, which is your source or which is radiating. So once you have the uh, so you define how the charge distribution or the current flow is on that device, and we can calculate the magnetic vector potential A. Once you have the magnetic vector potential A, we can calculate H. So there is direct relation between magnetic vector potential H and A. So this is over here, 11 1 on your right hand side. So this is how magnetic vector potential and magnetic field are related. So the first step is get J, find A. Second step is once you have A, you can use this expression over here and calculate the magnetic field. And once you have the magnetic field, you can calculate electric field like this. So three steps, and then we get the information for electric field and magnetic field. And just you have to note that only step one requires an integration. See, step one is calculating the magnetic vector potential from J, and you see calculating the magnetic vector potential over here is the only step which requires integration. We only need to do this integration. Okay, this is over here. Okay, the first step is again over here. The only first step, this is step one, this is step two, and this is step three. So the first step only requires integration. Second step and the third step only requires straightforward differentiation. So this is the outline of approaching each problem, and this is very important that we just uh, remember these three steps. And if and these equations are something you can you can get them in textbooks, but these three steps is what हमें याद रखना है कि ये तीन स्टेप इसी ऑर्डर में करने से we'll get the equations, we'll get the field distribution. Formulas तो इतने important नहीं है, you can always refer to textbooks and get those formulae, but steps is what comes next is important. Okay, so I'll briefly pause over here. अगर किसी को कुछ डाउट है इस इन तीन स्टेप्स में और अभी जो डिस्कस हुआ, बिकॉज यही यूज होगा थ्रू आउट अभी आज के क्लास में एंड इन फ्यूचर क्लासेस ऑल्सो, ताकि हम जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि अब ये तीन स्टेप है। अब तीनों स्टेप में हर स्टेप पे बहुत सारे इक्वेशन और मैथ दिखेगा, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल मे बी एट बेस्ट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उससे ज़्यादा तो यूज़ नहीं होने वाला है। अ, सबसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स जो भी यूज़ होगा वो होगा कहीं-कहीं पे जो इंटीग्रेशन करना होता है, या फिर मूविंग बिटवीन कोऑर्डिनेट्स। तो सर्कुलर स्फेरिकल से कार्टेशियन, कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल, यही सबसे कॉम्प्लेक्स मैथ्स जो आएगा। वो मूविंग बिटवीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इज़ सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल। ऐसा सिंपल सिंपल क्वांटिटीज़ को इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। बहुत सारा टर्म्स लिखना होता है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स फ़ील होता है, ओवरवेलमिंग लगता है। बट इतना परेशान होने वाला बात नहीं रहेगा। और बहुत सारा इक्वेशन इंटीग्रेशन देख के डरना नहीं है।
So, like, if there are any questions, you can ask them now. I'll pause here for a couple of minutes. Any questions from previous class or class before that? Class logistics, class timing, my style of teaching, anything that you want to speak about, like कुछ भी बताने का मन हो या फिर किसी को यूं ही कुछ बोलने का इच्छा है कि आज दिन कैसा है, ऐसा कुछ तो वो भी चलेगा. जस्ट चेकिंग अगेन. आवाज क्लियर है क्या? सूरज में भी आप अगर अनम्यूट करके बता पाओ. सूरज, निशा. आई कैन. Vikrant, like, can you please confirm if you have. Am I audible now?
Can you hear me now? Yeah, I'm guessing I'm audible now. Um, so did you know, like इससे पहले का कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा क्या? किसी को भी? अभी जो एक स्लाइड नो सर। डिस्कस हुआ, बिल्कुल कोई ऑडियो नहीं आया। अरे, you should have told me that you're not having audio because I was writing on screen. Um, okay, no worries. What I can do is maybe, okay, I'll quickly go over it again because I want you to just revise this before we move into today's uh, material. I don't know why my screen is so like this. Okay, this is okay. This is better. This is all shifty and everything. How do I this thing done? Okay, so today's recording will. I don't know if recording saved my voice or not. Okay, anyways, if you couldn't hear me, I'll again say welcome back to the class. And I was just going over the course outline and what we discussed. So we did not like we had not started anything आज का lecture के लिए. We were just discussing पिछले lecture में क्या हुआ था. So, okay, thank God we did not miss anything from today's. So we were just going through last class's steps of how we will find out different the electric and magnetic fields. Okay, so I'll just quickly go over the steps. So before for any field distribution that we want, the important thing is we should have the knowledge of source. So the source is your current density, sorry, your charge distribution or your current density, rho and j. When you have the information of rho and j, what you can do is you can calculate uh, the auxiliary potentials, which are A and V, and from A and V we can get fields E and H. So the last class we discussed and stressed quite a bit कि ये तीन steps ही हमें follow करने हैं किसी भी चीज के लिए. So the पहला step is to get your A from J. So if you have any radiating structure, उसमें हमें पता होगा कि charge distribution कैसा है या current density कैसा है. Once we have the information for current density and charge, what we can do is we can get the auxiliary vector potential A, uh, which can be found out from this expression over here, 11.3. So this is step one. And then we can calculate magnetic field from A, which is step 2. Step 2 is over here. This is step 2. And once we have the magnetic field from here, we can calculate the electric field from the magnetic field, which is step 3. So these are the three simple steps that is very important. And if we follow these three steps, we will be able to get the field information for almost all antennas and radiating structures. So
I'll maybe pause over here and take questions अगर किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, और पिछले क्लास से भी रिलेटेड, दैट्स फाइन, यू कैन आस्क नाउ. एंड I'll just to emphasize that equations पे इतना ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि इक्वेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, मेरे को ये टर्म नहीं पता है. जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स. ओके, जब प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तब हम लोग उस इक्वेशन को रेफर करेंगे और फिर उसको बिट बाय बिट देखेंगे कि इसमें कौन सा क्वांटिटी है और क्या हमारे पास उस क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन है कि नहीं. बस अब बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है बट इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं. ठीक है, इक्वेशंस को देख के स्ट्रेस नहीं होना है, स्टेप्स पे ध्यान रखना है कि इसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है, ऐसा. ठीक है, तो जैसे कि अभी बताया कि सोर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, अब सोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमें देखना होगा. फिर सोर्स से हमें ऑक्सिलरी पोटेंशियल्स मिलेंगे, ऑक्सिलरी पोटेंशियल्स मिल जाएंगे तो ऑक्सिलरी पोटेंशियल से फिर हमें फील्ड का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और हमें फील्ड का इंफॉर्मेशन ही चाहिए. एक बार फील्ड का इंफॉर्मेशन मिल गया, फिर हम लोग उसके साथ कुछ कुछ चीज़ें करेंगे ताकि हमें बाकी क्वांटिटीज मिल जाए. ओके, सो इतना ये स्टेप्स याद रखने हैं. अभी इधर 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट आता है इस स्लाइड में जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि बेसिकली लास्ट क्लास डिस्कस हुआ था. Checking again, is the audio still there? Can you hear me? Can one of you Yes, just sir. unmute? Okay, thank you. So I'm so worried now that I lost audio once and uh, there's no way to know. And you guys might be thinking, okay, I'm on a pause, something. Okay, so we'll proceed. So today we will discuss the radiation field of elemental dipoles. We'll stress on electric field, uh, electric dipole, not electric field, electric dipole. And magnetic dipole is somewhat you can get from electric dipole. We will discuss magnetic dipole as well, but it's basically dual of electric dipole. So all the equations which we get, it will look similar. Okay, करंट के जगह वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा सब्स्टिट्यूट करने से you can get one equation from the other, like they look very similar. Okay, so in this section we'll study the radiation fields of the simplest types of all radiating systems, namely elemental oscillating electric and magnetic field dipoles, and we'll find these field solutions for electric and magnetic dipoles such that they are duals of each other. This is what I said in the previous slide, that they are duals. Duals means एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर होगा, अगर वेरिएबल्स स्वैप कर दो तो एक दूसरा इक्वेशन आ जाता है. And as a consequence, the radiation properties of one can be deduced from the other without recalculation, which is very important. So if you know something is dual of the other and finding out one thing is easier, so what we do is find one thing and then just replace the variables and get the other equation. This is something which I have done a lot in my research. Recently I was trying to get field distributions on transmission lines. Or there
what I did was I calculated the currents for on the transmission line, and voltage के लिए I knew that this is dual, so I just वेरिएबल इधर उधर करके सिमेट्री से मेरे को सेकंड इक्वेशन मिल गया, एंड टू टेस्ट दैट आई सॉल्वर वगैरह में जाके कहीं और जाके वेरीफाई कर लिए, तो काम आसान हो जाता है. यू डोंट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, बट यू माइट हैव टू डू इट अगेन इफ जैसे अगर एग्जाम में सवाल आ गया है तो फिर कोई उपाय नहीं है, आपको नंबर्स के लिए तो करना पड़ जाएगा. Okay, so we'll start with the elemental electric dipole. This figure is very important. So we are considering this elemental oscillating electric dipole. So remember the term elemental. This means that is very small. And once you have said that this is very small, बहुत सारा approximation करना okay हो जाता है. If this was large, we cannot call it a dipole in the truest sense. Okay, so this is small, so it means that this length dl is very small. So and you have this small wire. Okay, so we basically have a very small wire over here, which is which is carrying current I, and its length is dl. And since this is very small, what we can consider is हम लोग मान लेंगे कि, और क्योंकि ये फाइनाइट है ना, मतलब छोटा सा वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है. अब करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस उसमें उसके वायर के अक्रॉस पोटेंशियल है. पोटेंशियल है तो इसका मतलब है कि उसके एंड्स में चार्ज जमा हो गया है. सो फॉर द करंट सिचुएशन, पॉजिटिव क्यू चार्ज वायर के एक एंड पे है, नेगेटिव क्यू चार्ज वायर के दूसरे एंड पे है. ओके, सो हमारे पास ये डायग्राम में हमें दिख रहा है कि हमारे पास प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज डीएल डिस्टेंस में सेपरेटेड है. ओके, तो और ये चार्जेस हैं इसीलिए करंट भी फ्लो कर रहा होगा. ओके, तो अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर सेपरेटेड है कुछ हल्का डिस्टेंस से, तो इसको डाइपोल बोलते हैं. ठीक है, तो हमारे पास मतलब डाइपोल क्यों, दो पोल है हमारे पास, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दो पोल्स हैं और ये सेपरेटेड है, तो ये डाइपोल हो गया. अब वंस हमारे पास डाइपोल का अजम्पशन है कि ये हमारे पास डाइपोल है, और हमारे पास इस हमें पता है कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हमने डिस्क्राइब कर दिया है एज साइनोसॉइडल. सो साइनोसॉइडल फ्लो कर रहा है तो आई कॉस ओमेगा टी उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा साइनोसॉइडल करंट फ्लो के लिए. सो आई उसका मैग्नीट्यूड, और साइनोसॉइडल फ्लो कर रहा है तो कॉस ओमेगा टी. ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी. ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और टाइम का डिपेंडेंस है. तो करंट फ्लो कर रहा है इस छोटे से डाइपोल में इस एक्सप्रेशन के साथ. तो हमारे पास अभी क्या हो गया, हमारे पास सोर्स का इन्फॉर्मेशन आ गया. ये अब हमें याद ध्यान रखना, 3 स्टेप थे ना. पहले स्टेप में हमारे पास था कि रो या जे में से कोई चीज़ चाहिए. अब रो और जे दोनों ही रिलेटेड हैं करंट से, तो करंट का इन्फॉर्मेशन आ चुका है हमारे पास. एंड दिस आई कॉस ओमेगा टी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ आई ई जे ओमेगा टी. तो ई पावर जे ओमेगा टी इज द साइन ओमेगा टी प्लस जे कॉस. ऐसे ही कुछ था ना, कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी. तो उसका रियल पार्ट ले रहे होगे तो आपको ये टर्म मिल जाता है. ये ऑयलर फॉर्म से आप इसको अगर ऐसा साइन कॉस वाले टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा. ओके, सो वी कैन राइट दिस करंट एज the real part of I e power j omega t, and this is another way of expressing this term को. So let's not stress about this thing. It is important that हमारे पास यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रहा था और इस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन के करंट कैसा फ्लो कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए. So we have the information of current now, and next step is we have to determine what the magnetic vector potential A. हमें ए के लिए सॉल्व करना है. ठीक है, एक बार ए मिल जाएगा तो उसके बाद हम लोग बाकी चीजें निकाल सकते हैं. Okay, since the current vanishes at the end of the wire, the charge must be deposited there. And as I was saying, the relation between charge and current is given by this. So I is equals to dq by dt. This is a well-known equation. So this rho, j, I, q, all these terms, they are information for source.
So if you have this information, either you know this how much your current is, or you know the value of the charges, you can get the expression for the current. Okay, so करंट का इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एंड और फेजर नोटेशन में अब क्यू को भी ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ क्यू ई जे ओमेगा टी। सो बस फेजर नोटेशन का बात है इसमें, ये इन्फॉर्मेशन के लिए ही है। एंड यू कैन, अब फेजर नोटेशन ऐसे लिखते हैं तो हम लोग उसको अब अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख रहे होंगे तो आई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जे ओमेगा क्यू, या फिर क्यू इज इक्वल्स टू आई बाई जे ओमेगा। एंड पिछले क्लास में बताया था, जहाँ पे भी जे, अगर आपके पास डी बाई डी टी टर्म है तो इसको आप सीधे जे ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हो अगर ये हार्मोनिक है तो। ओके, तो ये जे ओमेगा इज बेसिकली डेरिवेटिव एक्सप्रेशन, और वन बाय जे, और अगर कोई भी इंटीग्रल है डी टी के टर्म में तो इसको वन बाय जे ओमेगा लिख सकते हो आप। ओके, सो यूजुअली आप क्यू को कैसे लिखोगे, क्यू इज या इस एक्सप्रेशन को 11 8 को देखते हैं, तो आई टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी क्यू, राइट। एन आप अगर दोनों तरफ इंटीग्रल ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ आई टी डी टी। सो इंटीग्रल को आप वन बाय जे ओमेगा लिख सकते हो, तो ये आई बाय जे ओमेगा, तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। सो इंटीग्रल is 1 by j omega and d by dt is equals to j omega। ओके, ये आप कर सकते हो। अगेन यहाँ पॉज करते हैं, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर सकते हैं। Hello. Yes sir। Hello. Yes sir, I can hear you, can you hear me? Hello। Yes sir, I guess so was trying to say something। Yes professor। Hello. Yes sir, we can hear you। क्या हो रहा है? शुरू है क्या मीटिंग? हाँ। I have a question, and I guess sir is trying to communicate। Let me just quickly talk to sir if he has something to say। हाँ, आनंद जी। Yes sir। हाँ, we can start now। Yes sir, the class is already ongoing। I just paused for like students to read the slide, and if they have questions, so I usually Okay. do that। And we have a question, so Okay, no we'll issues. discuss Okay. Archana's question। She has asked a very good question. Yeah, if the how to find out whether an equation is harmonic or not। So Yeah. the सिंपल आंसर इज यू डिस्क्राइब कि कोई टर्म और कोई क्वांटिटी इज वेरिंग हार्मोनिक इन अ हार्मोनिक वे और नॉट। सो ओवर हियर वी नो दैट करंट
or the charge is varying in a harmonic way because we were the one, हमने decide किया कि current का जो variation है वो sinusoidal है. अगर current का variation हम कुछ और डालते तो वो harmonic नहीं होता. But in general sense, when we describe fields or when we give excitation to quantities, it's usually harmonic. We use sinusoids or we use a combination of sinusoids, so they all tend to be harmonic. So and if you want to find out whether it is harmonic or not, you look for these expressions. अगर कोई क्वेश्चन है या कोई डिस्क्रिप्शन है जहाँ अगर आपको e पावर j ओमेगा t मिलता है, so this e पावर j ओमेगा t और cos ओमेगा t, they are the ones which give away कि कोई चीज हार्मोनिक है कि नहीं. और अगर आपके पास कोई डायग्राम है या प्लॉट है और आपको ये ऐसा साइनोसॉइड दिख रहा है या समथिंग which looks close to sinusoid, like this may have like साइन का दो तीन टर्म्स ओमेगा और साइन प्लस साइन टू ओमेगा. This basically means your quantity has harmonics. Okay, e power j omega t, e power uh, uh, omega t plus omega square or something like. So all these if you have something in e power j and something, it means it's harmonic. Okay, and over here हमने बताया कि फील्ड करंट का जो वेरिएशन है वो हार्मोनिक है और वो साइनसॉइडल है. साइनसॉइडल और हार्मोनिक आर लाइक इंटर रिलेटेड. Okay, Archana, any follow-up questions on that, or anybody else any questions on that, or any other questions? So maybe if not, we will continue. If there are questions, you can keep writing in chat. That seems more comfortable. So in the previous slide, as we discussed, we had this diagram for a Hertzian dipole, जहाँ हमने decide किया कि I is the current flowing on the dipole, dl is the distance between these, like the distance of separation of the charges. Dipole पे एक plus q minus q charge है, and once we had the information for q, और current के साथ उसका relation लिख सकते हैं. And क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि ये करंट साइनोसॉइडल है, तो हम लोग उसको ई पावर जे ओमेगा टी के फॉर्म में लिख सकते हैं. एक बार ई पावर जे ओमेगा टी के फॉर्म में लिखा, उसका रियल पार्ट ले रहे होंगे तो जे ओमेगा वाला टर्म आ सकता है. एंड जे ओमेगा ऐसा बताया कि जे ओमेगा इज बेसिकली डी बाई डी टी इन टाइम के सिचुएशन में, एंड वन बाई जे ओमेगा इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी. ओके, सो हमारे पास अभी हम लोग अभी सोर्सेस को क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं. एक बार हमारे पास सोर्स का इन्फॉर्मेशन होगा, हम लोग वेक्टर पोटेंशियल्स, स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल्स निकाल रहे होंगे. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डाइपोल का इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, बिकॉज वी कैन यूज दिस व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग. लाइक हमारे पास जब इक्वेशंस लंबे हो रहे होंगे, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिप्लेस क्यू डी एल विथ P, and P is basically the dipole moment. P is your dipole moment. And dipole moment का definition से ये होता है, क्या definition ये कहता है कि the the charge quantity multiplied by the separation gives you the dipole moment. So Q is the charge quantity and dl is the separation, and this gives you the magnitude of the dipole moment. And since यहाँ पे हमारे पास dl एक वेक्टर क्वांटिटी है and इसका डायरेक्शन इज इन z, so we have az over here. Okay, see, z डायरेक्शन में dl मूव कर रहा है, so and dl is वेक्टर, so इस वजह से डाइपोल मोमेंट के लिए az डायरेक्शन उसका होगा. So we have now defined the dipole moment as a vector quantity, and this particular dipole, this small
ऑसिलेटिंग डाइपोल, इसको हम लोग हर्ट्ज़न डाइपोल भी बोलते हैं। तो एट इन क्वेश्चंस, इन एग्जाम्स, एट प्लेसेस ये ऐसा हो सकता है हर्ट्ज़न डाइपोल लिखा हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ हर्ट्ज़न डाइपोल लुक्स लाइक दिस। You have charge quantities which are separated by small distance, and the charge is basically oscillating. Okay. And now once we and the last two in this slide and the previous slide हमने clearly हमारा source को define कर लिया, हमने अपना हमारा current और charge और ये इन quantities को clearly define कर लिया है, तो हमारे पास source का information आ चुका है. Now we need to find out the goal is to find out the electric field and magnetic field for the electric dipole. तो हमारा final goal electric और magnetic fields निकालना है. We have completely defined our source now, and now next step is to find out the potentials. Okay, so we'll follow these three steps again. These three steps will keep coming up, and now the first step is to determine A from J. And क्लास के शुरुआत में राइट साइड में हम कुछ कुछ इक्वेशंस लिखे थे, हमेशा राइट साइड में सारे फॉर्मूलाज लिखे होंगे, and we'll keep using them to get the results. Okay, so we'll start finding out the potential, and this is the expression for the auxiliary potential. So ये expression हमारे पास है. Now this expression gives you the auxiliary potential at this particular auxiliary potential auxiliary magnetic vector potential at this particular point, and let's one by one go through each term. Now you have mu naught, because this is magnetic, so we can remember in this way that हमारे पास यहाँ पे permeability होगा, permeability of free space, and if this was in any other medium, ये mu naught के जगह बस mu आ जाएगा, and that mu will encompass mu naught times mu r, and mu r will be the relative permeability of that media. Okay, so since we are doing this in free space में हो रहा है, तो बस mu naught है, then it is multiplied by I and dl. So you have this charge flowing the current flowing over here, this is I, and then you have this dl, distance is over here, so I into dl is over here, which is coming from your source, and now denominator में 4 pi है, and then in the bracket it's the phase and the distance terms. So ऊपर में phase का term है, which is giving e power j beta r, and denominator में is the distance where you are trying to calculate your auxiliary vector potential, and ideal are the vector terms over here. So so dl की वजह से हमारे पास az का direction हमें मिल रहा है. So we have defined this auxiliary vector potential over here. Okay, so we have defined the A, but this A is yeah. So we have this A, and now the next step is to find out the magnetic fields. But अभी क्या है ना, we have defined this magnetic vector potential in the Cartesian coordinate system. So we have this information in Cartesian coordinate system, but we will switch to we will switch to maybe cylindrical or ठीक है. So we will switch to spherical coordinate system. Okay, that will थोड़ा आसान हो जाएगा fields का distribution उसके हिसाब से. So I guess सबको थोड़ा थोड़ा spherical coordinate system पता होगा. Cartesian coordinate is sorry x, y, z like this. But if we are talking about spherical coordinate system, we have a vector which gives you the distance. So and this is r, and then you have this direction, which is angular direction as theta, and this direction as phi. Okay, so this, so you can move in two angular directions, which are theta and phi, and you can, and any point will be at certain distance from your origin, which is the distance r. So this information was in Cartesian coordinate, and we'll try to switch to the other coordinate system. And over here, beta was your wave number, which is omega by c or 2 pi by lambda. And this az, now we are switching from Cartesian to spherical coordinate system. So spherical coordinate system के quantities as related है. Az is equals to ar cos theta a theta sin phi. So, and this comes from maths. Okay, so ये maths textbooks
से मिल जाएगा। एंड आई एम गेसिंग यूजुअली एग्जाम्स में ये अवेलेबल भी रहता है, सो यू कैन आइदर मेमोराइज और जस्ट रेफर टू टेक्स्ट बुक्स, एंड दिस इज नॉट वेरी मतलब कॉम्प्लेक्स। ये इंफॉर्मेशन हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम से मूव करते वक्त इंफॉर्मेशन होता है। ओके, सो द स्फेरिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए, जो हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, और उसका स्फेरिक उसको अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड इन ए आर डायरेक्शन एंड मल्टीप्लाइड विद द ए आर कोऑर्डिनेट, ए थीटा और उसका कोऑर्डिनेट और ए फाई और उसका कोऑर्डिनेट। सो अगर ये कार्टेशियन में होता तो हम लोग ये ए इज इक्वल्स टू ए एक्स ए वाई ए जेड लिखते हैं, जो कि हमें नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। तो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहे होंगे तो ऐसे लिख रहे हैं। एंड नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दीज क्वांटिटीज, एंड वी ऑलरेडी नो दैट ये ए जेड डायरेक्शन में है और ए एक्स और ए वाई डायरेक्शन में हमारा ए जीरो है। ओके, और ए जेड डायरेक्शन को ऐसे ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज होते हैं, तो हम लोग स्फेरिकल कंपोनेंट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ए आर इज इक्वल्स टू ए जेड कॉस फाई, सॉरी कॉस थीटा, एंड ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए जेड साइन थीटा। तो ये वाला जो क्वांटिटी था विच एट 11 12, इस 11 12 यहाँ पे एग्जैक्टली आता है और उसमें हम लोग कॉस थीटा मल्टीप्लाई किए हैं, और 11 12 वाला क्वांटिटी अगेन यहाँ बीच में आता है जिसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई होता है और माइनस का साइन आ जाता है। एंड ए फाई इज जीरो बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज टू स्विच फ्रॉम कार्टेशियन टू स्फेरिकल। तो यहाँ फाई के टर्म नहीं था। एंड ऑल्सो फ्रॉम नॉलेज ऑफ लाइक फिजिकली हाउ द फील्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें थोड़ा सा नॉलेज ऐसा है कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा होता है। तो इस एंड मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अगर आप मूव करो तो आपका पोटेंशियल जीरो होता है। ओके, सो ए इज बेसिकली मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, एंड फील्ड के अलोंग मूव करने से मैग्नेटिक पोटेंशियल जीरो होता है। सो अगेन फाई के अलोंग मूव करने से पोटेंशियल जीरो है, तो वो यहाँ दिख रहा है। ओके, सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसे पॉज करते हैं एंड आई लेट यू रीड द स्लाइड। आप स्लाइड देखो और स्लाइड से अगर कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। Okay. I guess you had chance to go through the slide, and we'll move to the next slide. Now, just to recap, first स्लाइड 1 और 2 में हमने कंप्लीट लिस्ट 1 2 आई गेस 3 स्लाइड्स, पहले 3 स्लाइड्स हमने करंट और चार्ज पे फोकस किया, which are basically information for charge rho and j, analogous हैं। And now we are focusing on now we found out a का डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया। हमने a के लिए पहले एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको डिफाइन किया एंड देन उसे मूव कर दिया आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग मूव कर चुके हैं ए का इंफॉर्मेशन, एंड नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द फील्ड्स। ओके, सो
Sir, Yes, sir. hello. Yes, sir. Previous slide, please show. Uh, yes, sir. With due respect, थोड़ा मैं बोलता हूँ यहाँ सर, Yes, sir. because some students are from second year Yes, sir. और some students are from third year final year. Yes, तो sir. सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को थोड़ा बेस नहीं है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से हो गई है। Yes. तो थोड़ा मैं क्या चल रहा है उनको बोलता हूँ, क्योंकि सबको ये जो पॉइंट अभी चल रहा है थोड़ा डिफिकल्ट लगता ही है। उसका रीज़न यहाँ जो इन्वॉल्व मैथ्स है, जो क्वांटिटीज़ है, वो इसका रीज़न है। सर यहाँ आपको सर ई शोइंग वन डाइपोल, छोटा सा एक एलिमेंट लिया है सर ने, जो इतना छोटा है कि it tends to its length tends to 0, लिमिट टेंड्स टू 0 जो बोलते हैं, इतना छोटा एक एलिमेंट सर ने दिखा है, जिसके एक तरफ प्लस क्यू चार्ज है, दूसरी तरफ माइनस क्यू चार्ज है। तो वहां से ये छोटे एलिमेंट से एट डिस्टेंस आर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो हम मेजर करने वाले हैं। और इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द लेंथ, तो किसी भी एंटेना जो पर्टिकुलरली वायर एंटेना है, तो कितने भी लेंथ का रहने दो, उसके फील्ड्स हमें मिलती है। तो ये हम कर रहे हैं सर अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं। उसमें दूसरी एक बात है कि यहाँ एक रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल ऐसे बोला है। तो पोटेंशियल ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेसिकली वो है स्केलर पोटेंशियल है, वो स्केलर रहता है। पोटेंशियल यानी क्या है कि चार्ज फील्ड में मूव करने में कितना वर्क डन होगा, तो W/Q, वो हम उसको पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ हमने वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल ऐसे अज्यूम किया है, एक तो मैग्नेटिक है और वेक्टर है, तो उसको हम ये बोल रहे हैं, कैपिटल ये जो सर ने यहाँ दिखा है। और रिटार्डेड उसको बोला गया है क्योंकि यहाँ डीएल में अभी जो करंट फ्लो हो रहा है उसी समय उसका फील्ड पॉइंट आर पे एट द डिस्टेंस आर नहीं पहुंचेगा, करंट फ्लो होगा और कुछ समय के बाद आर या कुछ डिस्टेंस पे वो फील्ड पहुंचेंगे, जो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। और एंटेनाज में हम सब डायरेक्शन में जो फील्ड जाएंगे तो उसके लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छी है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सर ने वही अभी आपको दिखाया है। सो माय अपील टू स्टूडेंट्स, आपको ये थोड़ा सा टफ लगेगा, आपको ही नहीं, हर जगह किसी को लगता है, क्योंकि उसका जो बेसिक मैथ्स है हम उस तरह से करते नहीं है। तो हम यहाँ तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है तीनों, तो थर्ड ईयर फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो अच्छी तरह से पता है, थोड़ा सेकेंड ईयर के बच्चों को थोड़ा टफ लगेगा। लेकिन एक बार ये हो गया तो हम फिजिकल जो देख सकते हैं ऐसे, तो कंसेप्ट एक छोटा सा एंटेना हम कंसीडर कर रहे हैं, एक कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। इसके बाद आपको फिजिकल एंटेना जो है एक्चुअल, तो जहाँ λ/2 डाइपोल बोलते हैं, या कार के ऊपर जो मोनोपोल एंटेना रहता है, या रिफ्लेक्टर एंटेना, डिश एंटेना, जो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, उसका स्टडी आ जाएगा तो आपको और अच्छा लगेगा। सो माय अपील टू ऑल माय स्टूडेंट्स, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमें नंबर भी अच्छा रखना है। 140 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है, उसमें से पहले लेक्चर में 70 थे और अभी थोड़े से ही स्टूडेंट अटेंड किए हुए, तो ये नंबर हम सर श्योरली बढ़ाएंगे एक मंडे से। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन विद नो ड्यू वरीज सर। रिस्पेक्ट। थैंक यू थोड़ा सर, सा आपने थोड़ा सा बहुत मैं वो अच्छा मेरे एक्सप्लेन बच्चे, कर दिया। हाँ मेरे जो स्टूडेंट है ना, तो वो यस सर। फिजिकली मैं उनको देख चुका हूँ, तो हमारा एक सिंक्रोनाइजेशन है, उनको पता है कि मुझे पता है कि उनका बेस क्या है क्या नहीं है। यस तो सर। किसी भी लेक्चर में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ऑनलाइन मोड में हैं यस सर। हाँ। थोड़ा सा, और उनको ये सिलेबस में है, थर्ड ईयर के सिलेबस में है, और आगे जाके वो पूरा ये ब्रांच भी ईटीसी उस पर डिपेंडेंट है। गेट का एग्जाम अभी यस चल रहा है, सर। आज है कल पेपर है,
तो उसमें तो ये पूरा आता ही है, लेकिन अभी ये यस सर। छोड़ेंगे तो बाद में उनको दिक्कत हो जाएगी। यस तो सर। थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर द थैंक यू। इंटरप्शन। नो वरी सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन कर दिया, और आपको बेटर पता है कि किन स्टूडेंट्स को कितना पता है। हाँ, क्योंकि और क्योंकि वो मेरे ऑनलाइन, स्टूडेंट, हाँ, आपकी वो दिक्कत है, उनका बेस क्या है पता नहीं है। हाँ, लेकिन और थर्ड जो और ऑनलाइन में फाइनल, थर्ड और यस सर। फाइनल के जो बचे हैं ना, यस उनको सर। तो अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है। अच्छा यू अच्छा। नो, कार्टेशियन जी पता सर। है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल भी पता है। यस सर। तो सेकेंड ईयर के यस। बच्चों को भी हो गया है, लेकिन थर्ड में थोड़ा हम उसको स्ट्रेस करते हैं। उनको अच्छा भी अच्छा। पता है, जीरो है ऐसा नहीं है। हाँ सर। तो आप अ, जो स्टूडेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। सो थैंक यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो सर ने काफ़ी अच्छे से डिटेल में कई कई पे चीज़ें ऐड करके भी बता दी। तो और आप अगर सेकेंड ईयर के हो या जिस भी ईयर के हो, आप जब भी कोई इक्वेशन दिख रहा है ना, तो ऐसा अगर आपको इक्वेशन देख के ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, तो बस सुन लो कि इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड का क्वांटिटी है वो क्या है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि जैसे ये ए है, तो ये ए क्यों है, क्यों कर रहे हैं। बाकी यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट बुक को यूज करके आप रीडू कर सकते हो। स्टेप्स इम्पोर्टेंट हैं। हम अभी जैसे एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे इधर म्यू डी आई डी एल वगैरह ये सब कैसे क्या लिखा हुआ है। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमने कॉर्ड अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज किया। कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज क्यों किया? ताकि इट्स बिकम्स ईजियर हमें आगे के स्टेप्स सॉल्व करने के लिए। अभी इस पर्टिकुलर डाइपोल के लिए सिमेट्री ऐसा है कि स्पेरिकली फील्ड्स बनेंगे। तो हम लोग अगर कार्टेशियन से अगर हम लोग स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर जाएं, तो हमें ईजियर होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने में। ओके, तो हम इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं कि किसके बाद क्या हो रहा है ध्यान रखना है। बीच बीच के मैथ की चीज़ें तो आप ऑलवेज यू कैन रेफर टू टेक्स्ट बुक, और बीच में क्या इंटीग्रेट हुआ, क्या डिफरेंशिएट हुआ, ए का फॉर्मूला क्या है, ये सब आप देख सकते हो बुक में। और जैसे अभी हमें पता है कि कार्टेशियन से स्फेरिकल जाना है, अब कैसे जाना है के लिए अब बुक उठा के देख सकते हो, बट हमें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव करना है ये पता होना चाहिए। ओके, सो हमने सोर्सेज डिफाइन किए शुरुआत में। अभी हम लोग वेक्टर पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, और हम लोग उस वेक्टर पोटेंशियल को पहले कार्टेशियन में डिफाइन किया, अब स्पेरिकल में शिफ्ट कर गए। अब एक बार स्पेरिकल में शिफ्ट कर गए हैं, अब हम लोग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ओके, या सो अब हमारे पास पिछले स्लाइड तक हमारे पास ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हमारे पास आ चुका था ए। अभी हमें कर्ल लेना पड़ेगा। हमने वो 3 स्टेप डिफाइन किए थे ना, जिसमें हमें पहले जे से ए निकालना था, ए से एच निकालना था। और एच का डेफिनेशन क्या, एच निकालने के लिए क्या डेफिनेशन था, 1/म्यू नॉट कर्ल ऑफ ए। और कर्ल, अब हमें पता होना चाहिए कि हमें कर्ल निकालना है। अब कर्ल निकालने के लिए बहुत बड़ा सा फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि हमेशा बुक में अवेलेबल होता है, और आप एग्जाम के टाइम याद करके चल जाना। तो ठीक है, तो इधर आप 2139 जो टेक्स्ट बुक शेयर किया हुआ है उसमें यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। कर्ल ऑफ ए कैसे निकलेगा? कर्ल ऑफ कोई भी वेक्टर आप ऐसे निकाल दो, ये 1/r² साइन थीटा बाहर रहता है, ये टर्म ये क्वांटिटी। आप ऊपर में ये क्वांटिटीज लिखे रहेंगे, ए आर, ए थीटा आर, ए फाई आर, साइन थीटा। ओके, तो ये मैथ के टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा फिजिक्स का दिमाग नहीं है इसमें, इसमें मैथ्स का दिमाग है। ये मैथ्स मैथमेटिशियंस ने हमें ये फॉर्मूला दे दिया। अभी हमें कर्ल निकालना है ऑफ ए। ये टर्म बाहर, ये पहला रो में ये टर्म्स हैं। सेकेंड रो में आपके डेरिवेटिव वाले टर्म्स होते हैं, डो बाय डो आर, डो बाय डो थीटा, डो बाय डो फाई। और लास्ट में आपका जो क्वांटिटी है जिसका आप कर्ल निकाल रहे हो, ए आर, आर टाइम्स ए थीटा एंड आर साइन थीटा ए फाई। ओके, तो ये जो कर्ल का निकालने का फॉर्मूला है, ये यूज करेंगे। और पिछले स्लाइड में हमने क्या किया था, ए को डिफाइन किया था, और ए को जब डिफाइन किया था तब हमारे पास ए थीटा और ए आर टर्म था, और जब ऐसे लिखा था ना, ए इज इक्वल्स टू ए जेड टाइम्स
सॉरी AR टाइम्स AR प्लस A थीटा टाइम्स A थीटा प्लस A फाई टाइम्स A फाई, ऐसा लिखा था। और हमने ये दिखा था कि A फाई इक्वल्स टू 0 था। ओके, सो वी हैव AR एंड A थीटा टर्म। सो A फाई टर्म 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये A फाई। उसके बाद अब हम लोग मल्टीप्लीकेशंस कर रहे होंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म। सिमिलरली या डिटर्मिनेंट निकालना, आई गेस यू माइट नो। डिटर्मिनेंट बहुत ही स्टैंडर्ड है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। हमें ये नीचे नीचे वाले रो के 3 टर्म में से एक टर्म 0 है, हमें ये सारे टर्म्स पता है और फिर डेरिवेटिव्स लेना है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ओवर हियर। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व कर रहे होगे तो E फाई टाइम्स 1 अपॉन म्यू आर डो बाय डो आर 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 ए थीटा एंड डो बाय ए आर डो फाई, ये आएगा। ठीक है, अभी स्ट्रेस नहीं लेना है कि यहाँ पे कैसे क्या हुआ। आप ये अगर ये सॉल्व करोगे तो आपको आधा पेज का मैथ लिखना पड़ेगा, बहुत सारे टर्म्स हैं इसलिए। बट वंस यू हैव कंडेंस्ड उसको आप ये टर्म फिल कर दोगे, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशंस भी लिखे हुए हैं उसके नीचे। ये ए आर को यहाँ पे ए आर पे सब्सटीट्यूट करना, ए थीटा को ए थीटा में सब्सटीट्यूट करना, मल्टीप्लाई डिवाइड डेरिवेटिव्स अब करने के बाद यू विल एंड अप विथ 1115 ओवर हियर, इधर ऊपर में। ठीक है, तो वंस यू हैव दिस, अब आपको फिर डेरिवेटिव्स ले लेना है डी बाई डी आर और डी थीटा के टर्म्स में। ये वाले एक्सप्रेशन में आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे थीटा यहाँ पर है और आर यहाँ पर है। तो डेरिवेटिव्स लेने के बाद आप यू विल एंड अप विद दिस टर्म ओवर हियर। ओके, ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बट अभी के लिए इनको इग्नोर कर देना है। हमें क्या ध्यान रखना है कि एच निकाल रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें कर्ल लेना है, और कर्ल लेने के लिए हमें बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैथ करना होगा, जो डिटर्मिनेंट निकालना है एसेंशियली। सब कुछ कर लेने के बाद वी विल एंड अप विद दिस एक्सप्रेशन ए फाई आई डी एल अपॉन 4 पाई। आई हमारा करंट था, डी एल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, 4 पाई कॉन्स्टेंट, बीटा स्क्वायर इज योर प्रोपगेशन कांस्टेंट, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1/j βr प्लस 1/j βr², ये दोनों सेम ही टर्म्स है, ये इसका स्क्वायर है। और ये ई पावर माइनस जे बीटा आर, अगेन वही बीटा आर वाले टर्म्स। तो ये जो कि हमारा फेज का इंफॉर्मेशन रखता है, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो मिला जुला के इतना सब कुछ करने के बाद, जहाँ पे बीच में हमारे पास ए आर के 2 एक्सप्रेशन आ चुके थे अलग अलग कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में, एच मिल जाता हमें, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। ओके, सो वी हैव द इंफॉर्मेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एज विथ नाउ। तो हमारा आधा काम तो हो चुका है, बहुत सारा काम करने के बाद आधा काम हो चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब बचा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से निकाल सकते हैं। तो मे बी यहाँ पॉज करते हैं, और अगर किसी को कुछ पूछना है कि क्या किया हम लोग, एक बार रीइटरेट कर देते हैं कि हमने पहले सोर्सेज डिफाइन किए, सोर्सेज से वेक्टर पोटेंशियल डिफाइन किया। वेक्टर पोटेंशियल जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट किया, हम लोग कार्टेशियन से स्फेरिकल में मूव कर गए। ठीक है, स्फेरिकल में मूव करने के बाद अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए हमारे वेक्टर पोटेंशियल से, ए से एच निकाल लिया और एच मिल चुका है। अब फाइनल जो बचा है वो है ई निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बट उससे पहले अगर किसी को कुछ डाउट है जो भी हुआ डिस्कस उसमें। मीनवाइल जब तक आप लोग स्लाइड देख रहे हो, फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स और एनी स्टूडेंट जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को लेके या फिर यहाँ पे अगर प्रॉब्लम लग रहा है, तो यू कैन मे बी जस्ट वॉच एनी शॉर्ट वीडियो ऑन मूविंग बिटवीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। यहाँ पे टू डू में लिख देते हैं कि स्टडी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। So this is
irrespective of what we are doing. Like ये आप अलग से भी क्विकली पढ़ सकते हो. And I'm guessing second year students को engineering mathematics में maybe पढ़ाया गया होगा. So you can refer to your math textbooks as well. Yes, sir. And They I have can studied. It is included up to 12th also, and in first year also there is chapter called as vector. yes sir. Yes sir. So you Scalar can and just revise. आप लोग रिवाइज कर सकते हो इस टॉपिक को, क्योंकि जितना फिजिक्स में बहुत यूज होता है बट मैथ्स में इंट्रोड्यूस होता है, तो दिस इज प्योरली मैथ्स बट फिजिक्स में यूज होता है, तो हम बार बार उस चीज को यूज कर मतलब आपको यूज पड़ेगा. हमारा एंड आई टारगेट कैन इतना है कि ये जो डाइपोल दिखा है यस सर. उसके जो फील्ड है एट डिस्टेंस आर, यस सर. तो फील्ड है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड. यस. वो हम दोनों फील्ड उसकी क्या वैल्यू है, क्या मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है, ये हमें निकालना है. तो एक जो फील्ड है एच इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके 3 कंपोनेंट रहेंगे. अगर वो कार्टेशियन में है तो एच एक्स एच वाई एच जेड रहेगा, तो उससे हमें एच की वैल्यू मिलेगी. लेकिन यहाँ एंटेना है तो स्पेरिकल उसके यानी पॉइंट सोर्स करके एक स्पीयर पे उसके फील्ड्स जो मिलेंगे, तो उसके लिए हमें एच आर एच थीटा एंड एच फाइव एच हमें जो कैलकुलेट करना है, तो उसके 3 कंपोनेंट रहेंगे एच आर एच थीटा एंड एच फाइव. तो उसके लिए हमने ए के 3 कंपोनेंट ए आर ए थीटा ए फाइव निकाले, और यहाँ जो एच का फॉर्मूला सर ने दिखाया है कर्ल ऑफ ए, तो यहाँ ये एच आर के लिए ए आर आएगा. इस टाइप से ये हम कर रहे हैं सर, अभी जो दिखा रहे हैं वो ये पार्ट है. और नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि ई के भी 3 कंपोनेंट रहेंगे, ई आर ई थीटा ई फाइव. तो क्या एक्चुअल सब 3 अधिक 3 प्लस 3 यानी 6 कंपोनेंट प्रेजेंट है क्या, या उसमें से कुछ जीरो है, और प्रेजेंट जो है उसका क्या मैग्नीट्यूड है, ये हमें अगर समझ में आ गया तो किसी भी एंटेना की फील्ड हम कितने भी डिस्टेंस पे निकाल सकते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू सर. इसी बीच में आई रोट डाउन द नेम ऑफ द मैथ टेक्स्ट बुक व्हिच आई हैव रेड, बीएस गरेवाल. आई एम नॉट श्योर शिवाजी यूनिवर्सिटी में कौन सा बुक यूज होता है. आई शेयर दिस टेक्स्ट बुक. आई रियली लव दिस टेक्स्ट बुक. इसमें काफ़ी सिंपल तरीके से लिखा हुआ और इंडियन ऑथर है, तो इट्स नाइस. सो अगर किसी को मैथ के लिए अगर कभी रेफर करना पड़ा और गेट के लिए, तो आई गेस दिस इज द बेस्ट बुक. आई शेयर द बुक विथ यू एंड आई जस्ट रोट डाउन द नेम, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत मैथ के बारे में बात कर रहे थे. एंड नेक्स्ट हमने वेक्टर पोटेंशियल निकाल लिया था. अब उससे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया. द फाइनल स्टेप इज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड अगेन फिर से कर्ल लेना है. एंड वी नाउ हैव टू टेक द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो सेम ये जो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला है, ये अगेन यू हैव टू रिप्लेस इन एच इंस्टेड ऑफ ए. हम लोग अब एच लिखेंगे और एच के लिए कर्ल निकाल लेंगे. एंड अगेन आधा पेज एक पेज जितना भी डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको ये ऐसा कुछ आएगा. ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद ये एक्सप्रेशन आएगा, जिसमें आप डेरिवेटिव ले रहे हो एच फाइव एन साइन थीटा का डी थीटा से एन आर एच फाइव का डी बाई डी आर से. तो हाँ, तो बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये था कि आपका केवल एच जो है वो ए फाइव में एग्जिस्ट करता है. एच थीटा और एच आर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो नीचे के दो टर्म्स तो जीरो ही हो गए थे. तो रिलेटिवली सिंपल रहेगा, आपको ये क्विकली ही मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन. अब एच फाइव का एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे. और एक बार वो सॉल्व कर लेंगे तो करने के बाद आपको ये वाले एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे. तो आप ट्राई कर सकते हो समय मिलने पे, जितना समय है. इट विल बी गुड प्रैक्टिस ऑल्सो. थोड़ा बहुत हाथ से लिख के अगर आप सॉल्व करोगे इट विल हेल्प यू. ओके. एंड मे बी एग्जाम्स में अगर डेरिवेशंस आता है एलिमेंटल डाइपोल के लिए, तो यू विल बी इन गुड प्रैक्टिस. अगर आप मतलब रटने से आसान होगा कि आप एक बार सॉल्व कर लो, तो आपको ना टर्म्स याद रहेंगे ऑटोमेटिकली. आप इजीली जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो.
सो वंस यू हैव द मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, कर्ल ले लिया, कर्ल लेने के बाद एक्सप्रेशन आया, एक्सप्रेशन में एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फिर उसको फिर से डेरिवेटिव लिया, एंड आपको दिख रहा है यहाँ पे ए आर और ए थीटा टर्म्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, एंड दिस इज व्हाट यू एंड अप विद। और आप सिमेट्री नोटिस करोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे जे बी आर का स्क्वायर था, अगेन यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे आपको जे बी आर का स्क्वायर और जे बी आर का क्यूब मिल रहा है, और यहाँ पे जे बी आर आर स्क्वायर आर, तो टर्म्स वैसे ही दिख रहे हैं और बस रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो थोड़ा बहुत सिमेट्री है, तो आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे हैं, सिमिलर से ही हैं। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए तो रिलेटिवली सिंपल, बस आपको ये डिटर्मिनेंट करेक्टली सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो नाउ वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। सो दिस वाज आवर टास्क, हमें क्या करना था, हमें किसी एक पॉइंट डिस्टेंस पे फ्रॉम आवर डाइपोल हमें फील्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ई और एच फील्ड थे, और ई और एच फील्ड निकल गया है। सो एक ई आर और ई थीटा एग्जिस्ट करता है, और एच फाई एग्जिस्ट करता है, ई फाई एग्जिस्ट नहीं करता। और हम आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत स्मार्टली एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहाँ पे ईटा नॉट का सब्स्टिट्यूशन हो गया, और ईटा नॉट इज बेसिकली रेशियो ऑफ म्यू नॉट ओवर ई ई नॉट, एंड दिस इज एंड दिस टर्न्स आउट टू बी वेरी क्लोज टू 120 पाई। ओके, आपको अगर याद होगा, म्यू नॉट और ई नॉट कुछ 8 इंटू समथिंग समथिंग और बहुत 10 का पावर ऐसे टर्म्स आते हैं, उनको अगर आप सॉल्व करके डिवाइड करोगे ना, दे टर्न आउट टू बी वेरी क्लोज टू 120 पाई, बट ये इक्वल नहीं होते, ठीक है। बट ये याद रखने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है 120 पाई, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो ये अभी इतना फ्रीक्वेंटली आएगा आपके थ्रू आउट कोर्स में कि आपको ये याद हो जाएगा, दिस इज इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस एंड दिस इज इक्वल टू 120 पाई ओम्स। सो again we'll pause over here. We started from describing this Hudson dipole figure. Hudson dipole figure, we had the current I flowing in this small wire, which was which gave us the information for charges which were at the end. And now our goal was to find electric and magnetic field at a distance r. So we completely defined the source information. From the source information, we calculated the magnetic vector potential A. So we calculated the potential over here. And once we had the potential at this particular point, we took the curl of that potential to get the information for magnetic field. And then we took the curl of magnetic field to get the information of electric field. So we have completely solved uh, the electric and magnetic field का distance. हमने electric field magnetic field एक डाइपोल के लिए एक डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर लिया। तो यही हमारा गोल था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना। So I'll pause here. अगर कोई क्वेश्चन है तो we can take the question, and if sir wants to add something to it, sir, you're most welcome. किसी भी एंटेना का पर्पस है कि वेव्स जो है वो स्पेस में छोड़ दे, या इट विल रिसीव वेव्स फ्रॉम द स्पेस। तो ट्रांसमिटिंग एंटेना के केस में एंटेना पे जो लोड है वो स्पेस है, तो उसका जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है वो सर ने अभी यहाँ दिखाया 120 पाई, इट कम्स अराउंड 376.7 ओहम अप्रोक्सीमेटली। तो इंट्रिंसिक का मतलब है कि बाय बर्थ नेचुरल है वो। फ्री स्पेस जो हम एयर बोलते हैं, जहाँ हम हमारे किसी भी सिस्टम के, कम्युनिकेशन सिस्टम के वेव्स ट्रांसमिट करेंगे या वहाँ से रिसीव करेंगे, उसका इम्पीडेंस है 120 पाई एंड अप्रॉक्सीमेटली 377 ओहम। तो गेट जैसे एग्जाम में ये वैल्यू आपको हमेशा यूजफुल रहेगी। और सर ने यहाँ अभी जो 3 कंपोनेंट दिखाए, ए आर, ई थीटा, ए फाई, तो ये जो 3 कंपोनेंट है उसमें ए फाई 0 आ गया है, यानी फाई के डायरेक्शन में ए प्रेजेंट नहीं है, ये उसका मतलब है। और एच जो है वो कर्ल ऑफ ए है, यानी एच आर जो है कर्ल ऑफ ए आर रहेगा, एच थीटा भी कर्ल ऑफ ए थीटा रहेगा, और एच पाई यहाँ तो ए फाई 0 है इसलिए एच पाई 0 ही रहेगा।
दूसरी साइड में सर ने ई आर, ई थीटा, ई फाई कैलकुलेट किए, तो इसमें ई फाई 0 आ गया, यानी 6 में से 2 कंपोनेंट तो एब्सेंट ही है, तो 4 कंपोनेंट प्रेजेंट है, ये इसका मतलब है। और ई आर का अगर आप इक्वेशन देखोगे तो कुछ आउटसाइड जो ब्रैकेट है उसमें है, वो मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लायर है एक तरीके से, और 1/r² टर्म एक है, 1/r³ टर्म एक है। अगर ई थीटा आप देखोगे, वहाँ 1/r, 1/r², 1/r³, ऐसे 3 टर्म्स है। r यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो टर्म की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा वैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा और टोटल वैल्यू ऑफ E5 विल डिक्रीज। तो यहाँ 3 टर्म है, एक है 1/r², तो डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर से चेंज हो गया तो 5 का स्क्वायर यानी 25 टाइम्स लेस, इफ थीटा जो है वो 25 टाइम्स लेस रहेगा। 1/r³ टर्म जो है तो 5 का क्यूब यानी 125 टाइम्स लेस रहेगा, यानी कुछ जो फील्ड्स है वो एंटेना के तुरंत बाद थोड़े ही डिस्टेंस पे डाई आउट हो जाएंगे, लेकिन 1/r टर्म जो है वो प्रोपागेट होता जाएगा। यानी आगे जाके सर आपको जो पढ़ाएंगे नियर फील्ड और फार फील्ड, तो ये टर्म्स आपको दिखाएंगे कि एक नियर फील्ड है और दूसरा जो है वो फार फील्ड है। और कम्युनिकेशन में फार फील्ड पे अभी ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन नियर फील्ड के कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि हम किसी मॉल में गए और पैकेट उठाया तो उसका जो बिलिंग होता है, वहाँ जो स्कैनर है वो फार नियर फील्ड में काम करता है। तो ये जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका आगे जाके ये फायदा होगा कि हमें कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन सा कहाँ यूजफुल होगा ये समझ में आएगा। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. So if there are no questions, we'll proceed. And as sir said, we will quickly introduce near field and far field expressions as well. So from the previous discussion, here is the summary of इधर summarize किया है the expressions for electric and magnetic fields. So we can see magnetic field is only in E5 direction and electric field is in E only in ER and theta direction. So we have half of the equations are actually zero. Well, half of the express like the fields in the coordinates are 0. Out of 6, we only have 3. And we'll try to quickly summarize what we just did, and then उसके बाद हम लोग नियर फील्ड फार फील्ड एक्सप्रेशंस करके थोड़ा सा मैग्नेटिक डाइपोल देख के क्लास खत्म कर लेंगे. Okay, so equations 11, 15 and 11, 16 constitute the electromagnetic field for the Hertz and dipole. 11, 15 and all this is 11, 16. This is the expression, these are the expressions for the electric and magnetic field. And if you have noticed, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो we only use the current in the dipole to find the potential A, and the charges का at the dipole was not used. हमने charges का use नहीं किया, but we could have taken an alternative route to find out these fields. हम लोग ना एक और तरीके से solve कर सकते थे. Instead of using instead of just doing magnetic potential and then taking curl, the other way ऐसा था कि हम लोग क्या करते कि उन जो चार्जेस का इंफॉर्मेशन था उन चार्जेस से हम लोग स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V निकाल लेते, और ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A तो हमने निकाला ही था. सो 11, 12 और 11, 4 से हम लोग A और V दोनों निकाल सकते थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं मल्टीप्लाई सब ऐड सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते थे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फॉर्मेशन ऐसे भी आ सकता था इंस्टेड ऑफ दिस रूट. हमने क्या किया, हमने ए निकाला, ए से एच निकाला, एच से ई निकाला. द अदर वे वाज ए निकालना था, वी निकालना था, और ए और वी को सब्ट्रैक्ट करके ई निकाल सकते थे. अगर वो भी करोगे आप ट्राई कर सकते हो, यू शुड ट्राई. एंड इफ यू ट्राई दिस,
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एक्सप्रेशन मिलेंगे, यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस आए हैं वो एग्जैक्टली सेम आएंगे. सो देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन रीच टू अ सॉल्यूशन, एंड दिस वाज वन वे. अब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या फिर आप स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दे विल टर्न आउट टू बी सेम. बट दिस वाज द ऑल्टरनेटिव वे, एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि आप कैसे कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली ए और बी के वैल्यूज दे दिए हैं, और आपको बोल दिया गया है कि ई और एच के वैल्यूज निकालो, सो इट्स फास्टर टू ऐसा बस सब ट्रैक करना ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग कर्ल. आपको पता है कि वो कर्ल एच का कर्ल निकाल के ई निकालने से काफी इजी है ना, कि आपके पास वी का इन्फॉर्मेशन है, ए और वी का इन्फॉर्मेशन है, तो आप डायरेक्टली सब ट्रैक कर दो. बट अगर आपको कर्ल और ये इंटीग्रेशन में चूज करना होगा, तो यू प्रोबेबली गो फॉर कर्ल, बिकॉज कर्ल में डेरिवेटिव्स लेने होते हैं, वो इजी होता है एज कम्पेयर टू ये इंटीग्रेशन करना. ठीक है. तो दिस इज द समरी. ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशंस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक और तरीका था जो हम नहीं डिस्कस किया इस क्लास में, बट आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. ओके. सो एज सर सेड, वी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशंस थे हमारे पास. जैसे ये जो एक्सप्रेशंस हमें मिले हैं कि यहाँ पे जे बीटा आर स्क्वायर आर क्यूब टर्म्स, ये डिफरेंट जो टर्म्स है जो कि आर का डिपेंडेंस शो कर रहे हैं, इनके बेसिस पे हम लोग फील्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कौन सा टर्म कब ज्यादा अपीयर प्रेजेंस रख रहा है. तो अगर आप फील्ड के जो आपका डाइपोल था, ये प्लस क्यू माइनस क्यू का जो डाइपोल था आपके पास, इसके आप अगर बहुत पास के रीजन में हो, उसको कॉमन सेंस से इसकी इसको नियर फील्ड बोल देते हैं. अब फील्ड आप नियर में हो, और अगर आप उससे बहुत दूर चले जाओ, तो उसको फार फील्ड बोलते हैं. ओके, क्योंकि आप फार में हो, फार द रीजन में हो. तो नियर फील्ड और फार फील्ड दो रीजन में सेपरेट कर दिया. अब ये जो दो रीजन को सेपरेट किया है, वो कैसे कर रहे हैं, वो बेस्ड ऑन ये आर कितना डिस्टेंस पे है, और हम ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, ये ई पावर जे बीटा आर, इसके डिपेंडेंस और इनके डिपेंडेंस के हिसाब से आएगा. ठीक है. सो इफ यू टेक बीटा आर विच इज इक्वल टू टू पाई, बीटा को आप टू पाई बाय लैम्डा लिख सकते हो, एंड दिस टू पाई आर बाय लैम्डा, अगर ये वन से बहुत ही छोटा है, तो इफ दिस बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल फ्रॉम वन, ये जो आपका एक्सपोनेंशियल के अंदर या जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, अगर ये बहुत छोटा हो जाता है, तो हम लोग कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हैं. और अगर ये अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा ऐसा आ जाएगा, एच वाई इज टू आई डी एल फोर पाई आर स्क्वायर साइन थीटा. तो इसमें क्या हुआ, हमारा ये जे बीटा आर वाला ये जो पहला टर्म है, ये गायब हो गया, और ई पावर माइनस जे बीटा आर वाला टर्म भी गायब हो गया. तो सबसे पहला जो अप्रोक्सीमेशन क्या हुआ है, ई पावर माइनस जे बीटा आर, इसको आप अगर एक्सपैंड करोगे, एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है, तो वो ऐसा टर्म आएगा, वन माइनस जे बीटा आर माइनस बीटा आर स्क्वायर बाई टू, प्लस ये ऐसे कंटिन्यू होगा. और क्योंकि ये बहुत वन से बहुत छोटा है, तो ये जो आगे का ये जो सीरीज का पूरा आगे का टर्म्स है, ये वन से बहुत छोटे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली वन ही आएगा. ठीक है. तो दिस विल barely affect the magnitude, and so this entire thing becomes equal to 1. So ये e power minus j beta r, this becomes 1. एंड आप अगर ये दो टर्म देखो, तो अगर आप जे बीटा आर वाला जो टर्म है, ये वन बाय जे बीटा आर, अगर जे बीटा आर को आप एक्स लिखते हो, वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, अगर आप इनको बहुत स्मॉल वैल्यूज फॉर एक्स के लिए देखोगे ना, तो इन दिस विल टर्न आउट टू बी वेरी क्लोज टू वन बाय एक्स स्क्वायर. ओके, वन बाय एक्स स्क्वायर क्वांटिटी ज़्यादा बड़ा होगा. अब जैसे कि आप देख लो, 0.001 है, और आपके पास 0.1 है. ठीक है. ओके, लेट्स से x इज इक्वल्स टू 0.1, एक्स स्क्वायर कितना होगा, 0.01. ओके. अब आप इन दोनों को वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर करोगे ना, तो दिस विल टर्न आउट टू बी वेरी क्लोज टू 0.01, क्योंकि ये वाला टर्म, आई एम गेसिंग आई एम डूइंग समथिंग करेक्ट. कुछ तो गड़बड़ कर दिया. Yeah, so this will turn out to be very close to 1.
1 upon इसका square, because this will give you 100 का square, right? So this will give you 10 का this will give you 10 and this will give you 100, and so yeah, so this turns out to be very close to 100. एंड अगर आप बहुत और छोटे वैल्यूज के लिए लोगे तो ये वाला टर्म जो है, जो पहला वाला टर्म है, दिस वैनिशेस, ओके। सो हमें सेकंड वाला टर्म ही डोमिनेट करेगा। तो ये एच का एक्सप्रेशन ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा नियर फील्ड के लिए। मेक आपको ध्यान रखना है कि ये नियर फील्ड में चीजें गायब हो रही हैं और आपको कौन सा टर्म का डिपेंडेंस आ रहा है। तो एच बिकम्स 1/j β r²। ओके, सो ये आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन करके भी वेरीफाई कर सकते हो। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन नियर फील्ड। एंड आप अब इसी को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करो। ये e⁻j β r वाले टर्म है, ये 1 बन जाएंगे। ये सबसे लार्जेस्ट जो टर्म है वो वाले खुद आप गायब कर सकते हो। तो ये वाला टर्म इस केस में, इस इन दोनों के कंपैरिजन में ये r³ वाला टर्म डोमिनेट करेगा, इनके इस केस में भी r³ वाला टर्म डोमिनेट कर रहा होगा। ओके, और सिमिलरली अगर आप बायोट-सावर्ट्स लॉ से भी अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो आपको यही आ रहा होता। इक्वेशन 11 17 जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है ये। तो अगर आप ये देखोगे, ये अब अगर आप करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटोस्टैट्स में, ये अगर करंट कैरिंग वायर होता है जिसमें आई करंट कैरी हो रहा है, उससे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो ऐसा डिस्टेंस पे, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाल रहे हो तो ड्यूरिंग आई फ्रॉम आईडीएल, अगर ये डिस्टेंस होता, मतलब इसका अगर क्रॉस सेक्शन लोगे वायर का, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होता अगेन उसका भी एक्सप्रेशन ये ऐसे ही दिखता है। अगर यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रिबल हो गया है, बट दिस वाज रिटन एज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl times ar, which is vector, and r square. Okay, so if you match them closely, this is you have this idl term on the numerator, 4 pi r square in denominator, and dl cross ar will give you the sin theta expression. So अगर आप बायट-सावर्ट लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स में अगर सॉल्व करोगे तो नियर फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सेम आता है। तो ये और एक तरीके से वेरीफाई हो रहा है कि नियर फील्ड में अगर डाइपोल के आप ते जाओगे तो वो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड से रिजेंबल करता है। ओके, और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप अगर अप्रोक्सीमेशन करोगे तो सबसे जो हाईएस्ट टर्म है वो ही डोमिनेट कर जाता है। तो ये आगे वाले टर्म्स गायब हो जाएंगे और ये ई पावर वाला टर्म 1 बन जाएगा। सो यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन ई आर एंड ई थीटा एज पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। पी आपको याद होगा, यहाँ पे ये डाइपोल के लिए लिखा हुआ है, ये मैग डाइपोल मोमेंट है, QDL पे लिख सकते हो आप यहाँ पे QDL। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन नियर फील्ड में ऐसा आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर नियर फील्ड में है, मतलब अगर आप डाइपोल के पास में हो, तो आपके ये एक्सप्रेशंस आएंगे। और अगर आप ये इसको आप मैच करो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशंस आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू एलिमेंटल इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट p। अगर आपके पास कोई डाइपोल मोमेंट होता, कोई अगर डाइपोल होता, अगर आप डायरेक्टली आप उसको लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है ना, उससे अगर आप निकालते तो सेम एक्सप्रेशन आ रहा होता। In the near field zones of an oscillating time varying dipole are called quasi-static fields. Why quasi-static? Quasi basically means कि इफेक्ट वैसा दिख रहा है बट है नहीं। ओके, तो दे आर कॉल्ड एज क्वाजी स्टैटिक। तो अब हमने पिछले स्लाइड में देखा कि अगर आप बायोट-सावर्ट अगर मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए आप सॉल्व करते तो आपको नियर फील्ड का एक्सप्रेशन से मैच करता है। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए सॉल्व करोगे डाइपोल के लिए, तो नियर फील्ड के एक्सप्रेशन से मैच करता है। तो नियर फील्ड हमारे स्टैटिक फील्ड्स को रिजेंबल करते हैं बट स्टैटिक है नहीं, तो हम उसे क्वाजी स्टैटिक फील्ड बोलते हैं। ये दिस रिजेंबल्स स्टैटिक फील्ड। ओके, since they resemble static field they are called quasi static fields।
and the expressions can be verified. So for current carrying wire, Biot-Savart's law, near field edge, and for dipole, electrostatics, near field E, and they resemble the static fields. Okay, so this is that theory about the near field expressions. एंड सिमिलरली सो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अभी बस अप्रोक्सीमेशंस कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को निकालना, और एक बार ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, अब हम लोग अलग अलग अप्रोक्सीमेशन डाल रहे हैं कि अगर कि इतने डिस्टेंस पे है तो कौन सी चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट दिखाएंगे और कौन सी चीज़ें कम इफेक्ट दिखाएंगे। और तो नियर फील्ड में क्या था, नियर फील्ड में ई पावर माइनस जे बीटा आर टर्म 1 बन गया, और माइनस 1/जे बीटा आर टर्म गायब हो जाता है, बिकॉज तो सेकेंड वाला टर्म ज़्यादा डोमिनेट करेगा। फार फील्ड में जस्ट उल्टा होता है, फार फील्ड में ये जे बीटा आर टर्म यहीं पे रहेगा, 1/जे बीटा आर स्क्वायर टर्म गायब हो जाएगा। ओके, तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन H5 का एक्सप्रेशन ये मिलेगा। और सिमिलरली ई थीटा वाला टर्म जिसमें 1/जे बीटा आर टर्म है वो एग्जिस्ट करेगा, और ये R² और R³ वाले टर्म बहुत छोटे हो जाएंगे लार्ज डिस्टेंस में, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिख रहा होगा वो ये वाला टर्म होगा यहाँ पे, और ये टर्म एग्जिस्ट करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ये वाला टर्म, ये वाला पार्ट होगा और ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फार फील्ड में जो अवे फ्रॉम डाइपोल, हमें ये एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं। तो सॉल्व करने के बाद अलग अलग R² R³ के टर्म्स को हम जीरो कर रहे हैं और हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है, एंड दीज आर कॉल्ड फार जोन फील्ड्स। और यहाँ पे कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज ई थीटा एंड H5 आर इन स्पेस क्वाड्रेचर एंड इन टाइम फेज। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। स्पेस क्वाड्रेचर का क्या मतलब है, H5 और ई थीटा टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे टर्म्स जीरो हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है जो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग स्पेस क्वाड्रेचर में है, उसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है। H5 और ई थीटा टर्म्स वो लोग स्पेस के अलग अलग एंगल्स पे हैं, तो दे आर इन स्पेस क्वाड्रेचर। बट इन टाइम फेज अगर आप टाइम देखो तो ई पावर जे बीटा दोनों के फेजेस सेम है। अगर ये फेज में अगर कुछ शिफ्ट होता तो वो अलग आउट ऑफ फेज होता है, बट दोनों सेम फेज में है। ओके, तो ये साइन थीटा वाला टर्म भी आपको दिख रहा होगा, ये भी सेम है। तो फेजेस वाले टर्म आपके सेम है। अगर ये इसमें से कोई कॉस होता तो वो लोग टाइम क्वाड्रेचर हो जाते हैं, अगर 90 डिग्री अगर वहां लगा था। तो ये लोग स्पेस क्वाड्रेचर में है बट इन टाइम फेज में है। सेकेंड चीज, अगर आप इनका रेशियो लो, अगर आप इनको डिवाइड करो, तो इट विल टर्न आउट टू बी eta नॉट, विच इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में आप हो। ओके, so this is second observation. First observation, second observation, and there is, and at far distance they have the same properties as plane waves. अगर आप ये, हाँ, अगर आप plane waves का expression derive करोगे from the Maxwell's equations, it turns out to be इनके जैसा ही रिजेंबल करेगा। तो और आप अगर ऐसा फिजिकली इमेजिन करो, तो आपके पास अगर कोई डाइपोल या पॉइंट सोर्स है या डाइपोल है या कोई भी सोर्स है, उसके नियर फील्ड में वो रिलेटिवली वो स्फेरिकल होते हैं, बट सिर्फ आप बहुत बड़ा स्फेयर बनाओ, बहुत बड़ा सर्कल बनाओगे, तो एक पॉइंट पे आपको वो, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको वो प्लेन दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर उसका आप डायमीटर बढ़ाते जाओ, जैसे अभी अगर अर्थ का एग्जांपल लेते हो, अर्थ, अभी हमें अर्थ का डायमीटर इतना बड़ा है कि हमारे रेस्पेक्ट में हम जहाँ पे खड़े हैं हमें फ्लैट दिखता है। तो सिमिलरली एट आफ्टर अ वेरी फार डिस्टेंस द फील्ड्स अपीयर टू बी प्लेन इंस्टेड ऑफ सीमिंग स्फेरिकल। अगर आप सोर्स के पास जाते जाओगे तो फील्ड आपको आपको धीरे धीरे वो सर्कुलर स्फेरिकल वेव फ्रंट दिखेगा। बट जितना दूर जाओगे वो फील्ड फैलता जाएगा और आपको प्लेनर वेव फ्रंट दिखेगा। तो दे अपीयर टू बी एज प्लेन वेव्स। ओके,
And the third observation is that the magnitude varies inversely with the distance from the source. तो 1/r का डिपेंडेंस होता है जब हम लोग फार फील्ड में होते हैं, एंड दिस रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, सो ये 1/r का डिपेंडेंस होता है. तो आपको अगर फील्ड कहीं पे भी अगर एक पॉइंट पे नोन है, अगले पॉइंट पे निकालना है, तो ये r 1/r का रिलेशन चल रहा है उसमें. ओके, सो मे बी दिस क्लास बहुत लंबा खिंच गया है. वी आर क्लोज टू 2 hours नाउ. सो हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं. अगर कोई डाउट्स है तो वी कैन डिस्कस द डाउट्स नाउ रिगार्डिंग विद व्हाट वी जस्ट डिड फॉर नियर फील्ड एंड फार फील्ड, and maybe if sir wants to add something he can, and then maybe we can wrap up the class. Sir, please show previous slide. Okay. So first observation जो है E theta and H pi are in space quadrature and in time phase. इसका मतलब है कि हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख नहीं सकते, लेकिन ये इक्वेशन की वजह से हमें समझता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा, तो स्पेस में 90 डिग्री में रहेंगे वो, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगेन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम ऐसे रहता है. और इन टाइम फेज का मतलब है दोनों फील्ड अलग अलग प्लेन में है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पे जाएगा उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम पे जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होता है. तो दैट इज मीनिंग ऑफ इन टाइम फेज. और ये जो रेशो दिखाया अभी सर ने ई थीटा बाई एच पाई, it is equal to eta 0 which is called as intrinsic impedance of the medium. यहाँ मीडियम रहेगा एयर या फ्री स्पेस. तो जो अभी पिछले स्लाइड में सर ने कैलकुलेट किया था अराउंड 376 और 377 ओम आ जाएगा वो वैल्यू. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. चैट में कुछ लिखा है क्या किसी ने? अर्चना को स्लाइड्स नहीं दिख रहे हैं. अर्चना, कैन यू check if it is visible now, अगर अभी दिख रहे हैं तो. if not, मे बी आप रीजॉइन कर सकते हो. बट एनीवेज आज के लिए आई गेस इतना सफिशिएंट है. वी कैन डिस्कस मैग्नेटिक डाइपोल properly in the next class because we have discussed quite a lot of things now. Yeah, so yeah, there were only a few slides. हम लोग क्विकली नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक डाइपोल फिनिश करके उसके आगे के मटेरियल्स को डिस्कस कर लेंगे. दैट इज ओके विथ यू सर? ठीक है ना सर? तो 2 घंटे हो गए हैं तो आई गेस काफी लेट हो गया होगा इंडिया में. यस सर, नो इश्यूज. Okay. थैंक यू वेरी मच. So thank you, sir. I'll stop the recording now. Our class slides and class recording. Quickly I'll try to share on the WhatsApp group. Please post the attendance also. Okay, sir. So thank Okay, you. sir, I'll do that.